بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے۔ ناظرین، اسرائیل ظلم اور بربریت کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں تراویح کے دوران نمازیوں کو جو ہے زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد بیشتر نہتے فلسطینیوں کی ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اب جو ہے غزہ پر فضائی بمباری کی جا رہی ہے، جس میں 22 فلسطینی جو ہے شہید ہو گئے ہیں، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ 9 بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی برادری اس پر خاموش ہے، ہیومن رائٹس چیمپئن اس پر خاموش ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ کیا یہ وار فل سکیل وار میں کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، آج اس پر ذکر کریں گے۔ مسجد اقصی کے احاطے میں کل آگ لگی اور اس آگ کو دیکھ دیکھ کر اسرائیلی عوام جشن منا رہی ہے۔ امت مسلمہ بھی اس پر خاموش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ OIC کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، صرف محض سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں، عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ضرور ہوا، لیکن کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ فلسطینیوں کی داد رسی کون کرے گا؟ نہتی عوام پر کب تک ظلم ڈھایا جائے گا؟ آج پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناصر شیرازی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، تینوں سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں پہلے چلوں گا علی سرور نقوی صاحب کی جانب۔ علی سرور نقوی صاحب، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، لیکن اس ہنگامی اجلاس کے بعد کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور جو اس وقت وہاں پہ اسرائیل میں وہ فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، خاص طور پہ یروشلم میں، وہ ایک پھر ایک ایسا واقعہ ہے اور ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، اور اس میں انسانی حقوق کی پامالی، سخت ظلم و تشدد کا مظاہرہ، اور فلسطینیوں کے اوپر ہر قسم کی آفت ڈھائی جا رہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، اور جبکہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور عبادت ہو رہی ہے، اس میں یہ اسرائیلی ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ بین الاقوامی برادری یا مسلمان اسلامی امہ کا اس پہ کوئی خاص رد عمل نہیں ہے، اور سیکیورٹی کونسل کا جو سیشن ہوا اس کے بعد کوئی بیان نہیں جاری ہوا۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی گلوبل پالیٹکس ہے، بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی معاملوں پہ جو بیانیہ اور جو پوزیشن اختیار ہوتی ہے، وہ سیاسی ہوتی ہے۔ یعنی کہ چونکہ اس میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ اسرائیل کی مذمت اب بہت سے ملک کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے جو سلامتی کونسل کا جو سیشن ہوا، جو اس کا اجلاس ہوا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کو ایک شہ مل رہی ہے کہ جو بھی چاہے وہ کر لے، اس نہتے عوام، اس نہتے آبادی کے خلاف، اور جس حد تک تشدد ان پہ ڈھالے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میرا خیال ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک وقت آئے گا جب ان کو اس کی سزا ملے گی، لیکن بین الاقوامی برادری کی طرف سے، اسلامی امہ کی طرف سے کوئی ایکشن اب تک نہیں ہو رہا۔ چند ممالک البتہ وہ اس پہ بیان دے رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان بڑا سخت آیا، دوسرے سعودی حکومت کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ OIC اسلامک آرگنائزیشن کی جو تنظیم ہے، وہ اس کا کوئی بھی ابھی تک ریاکشن آفیشل رسمی یا غیر رسمی یا سرکاری طور پہ کوئی نہیں ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے۔
ब्रिगेड साहब आप की जानिब बढ़ूंगा। ब्रिगेड साहब क्या समझते हैं कि तनाज़ा अभी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना तनाज़ा है, दहाइयों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें इस रमज़ानुल मुबारक की, जब से रमज़ान शुरू हुआ है यहाँ पे जो मशरक़ी इलाका है वहाँ पे फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने के हवाले से एक कार्रवाई जारी है, और इसराइली आबादकार जो हैं वो कोर्ट के ज़रिए उनको बेदखल करवाना चाहते हैं, जिस पर सारी ये रेजिस्टेंस हुई है। और फिर हमने देखा मस्जिद अक्सा में जो कुछ हुआ है। इन मुतनाज़ा इक़दामात को क्या आलमी कम्युनिटी नहीं रोकेगी? ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। वो इसलिए कि ये इंसानी हुकूक, इंसानी वजूद और इंसान के जो इज़्ज़त नफ्स है या उसको जो रहने का हक़ है, वो उनसे उनको महरूम किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी रहते हैं और ये सदियों से उधर आबाद हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका ये हक़ इसी अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है। इसका ये हक़ ओस्लो एकॉर्ड में भी तस्लीम हुआ है। टू नेशन का जो वहाँ पर स्टेट का या टू स्टेट का जो नज़रिया है वो अमेरिका ने, कार्टर साहब उसको परसू कर रहे थे। और इसके अलावा जो एक बड़ी सर्वे हुई थी इजराइल में 2007 में, उसमें भी ये तस्लीम किया गया था कि इन ज़मीनों पर और इस इलाके पर जो इसराइल जो फ़लस्तीनियों का हक़ है वो अपनी जगह पर मुसलमा है। और इनके साथ जब तक ये स्टेट्स का फार्मूला तय नहीं होता तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आप अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना करारदाद जो अभी तक हल तलब है वो फ़लस्तीन का है। तीसरी बात ये है कि ये जितने भी इलाके लिए गए हैं, ख्वाह वो यरूशलेम हो, ख्वाह वो गोलान हाइट्स हो, इसके अलावा बाकी जो वेस्ट बैंक हो या जो बाकी इलाके, ये इजराइल ने फोर्सफुल ऑक्युपाई किए हैं। ये जंग के नतीजे में उन्होंने लिए हैं और काबिज है उस पर, और नाजायज़ काबिज है। एक तो इजराइल का वजूद ही ना मतलब है कि नाजायज़ है, इलेजिटिमेट सन ऑफ द बिग पावर्स हैं, और जिस तरीके से बारफोर डिक्लेरेशन हुआ था। और इसके अलावा अभी जो उनको बेदखल किया, ये बेदखली तो बहुत अरसे से जारी है। और क्या करते हैं कि ये वहाँ पर ज़मीन को, एक खिते को बाकायदा बैरिकेड कर लेते हैं, फिर वहाँ पर बुलडोज़र चला देते हैं, उनके घर में स्पार कर देते हैं, फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं। और फिर जब वो औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनके जो बीमार, उनके जो भी है वो एहतजाज करते हैं, तो उनके जवानों को अलग करके ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, बच्चों को अलग करके और उनको ट्रामा में मुब्तला करते हैं, और औरतों की जिस तरीके से बेइज्जती करते हैं। तो ये दुनिया के सामने, कैमरे के सामने आके हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ठीक है, अमेरिका का तो अपना ये एक सैटेलाइट है, एक बदमाश उन्होंने पाला हुआ है मिडिल ईस्ट में मुस्लिम दुनिया के लिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम दुनिया में सिवाय चंद ममालिक के, जिसमें टर्की या सऊदी अरब या पाकिस्तान या ईरान या ये ममालिक शामिल है, बाकी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती कि भाई इनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। कोई आवाज़ उनके लिए उठा ले, कोई ओआईसी का इजलास बुला ले, या अपने तौर पर उनके सफ़ीर को, या अभी तक तो आपने देखा फिर एक और चीज़ की तरफ आपके कि इजराइल को ये अभी उनका एक नज़रिया बन चुका है कि वो ताकत के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं, और ताकत के ज़रिए उनके लिए सब कुछ जायज़ है। और ताकत पर जो उन्होंने हासिल किया हुआ है, ये अभी उनका एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो ये जो नज़रिया है, ये फोर्स का, ये जंगल का कानून है, इस कानून को किसी तरीके से मुहज़्ज़ब माशरे में बर्दाश्त करना ये जुल्म है, ये जुल्म का साथ देना है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है निहत्ते फ़लस्तीनियों को, तो उनको मगरबी मीडिया जो है, और स्पेशली अमेरिका बहादुर जो है, उनके मीडिया उनको एज ए टेररिस्ट और इस्लामिक टेररिस्ट के तौर पर उनको सामने लाते हैं कि भाई ये तो टेररिस्ट है और ये तो दरिंदे है, ये तो दहशतगर्द है, तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और सबसे पहले जो इन्हें जो अक़वाम मुत्तहिदा का वो है कि ये यरूशलेम में कोई मुल्क अपना सफारत खाना नहीं खोलेगा, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने भी खोल दिया और बाकी। और उस पर थोड़ा इम्तियाज़ ये कि बेरूत का धमाका हुआ, उस धमाके के नतीजे ने
क्योंकि वो इसराइल ने कराया था और उन्होंने सिटी स्टेट्स को, जिस तरह बहरीन है या दुबई है या कतर है या इसके अलावा यूएई वगैरह, ये उनको ये पैगाम भिजवाया कि आपके भी यानी इसी तरह एक निशाना, एक बम ब्लास्ट जो है काफ़ी आपके इकोनॉमी के लिए, आपके एग्जिस्टेंस के लिए। तो उनसे ट्रंप साहब ने फोर्स डालकर उनको रिकॉग्नाइज भी करवा लिया। तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों के साथ दो किस्म का जुल्म हो रहा है, एक मुसलमानों का जो बेहिस्सी है और दूसरी तरफ पर दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और तीसरी तरफ पर इजराइल के जो मजालिम हैं, जो स्कॉर्चर पॉलिसी है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करेंगे क्या इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन ही हल है, क्या फ़लस्तीनी इसको मानने को तैयार होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का क्या हंगामी इजलास दोबारा बुलाकर कोई हिकमत अमली तय की जाएगी, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर कब तक ये जुल्म जो है जारी रहेगा, इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल के मामले पर हम डिस्कस कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर किस तरह से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है इसराइल की जानिब से, वो ज़ेर बहस है मौजू। हमारे साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद हैं, मशरिक़ वुस्ता के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास सुर्ख लाइन अबूर कर चुका है और ये मामलात कई अरसे तक जारी रहेंगे, तो आप क्या समझते हैं कितने अरसे तक ये मामलात इस तरह से कशीदगी जारी रह सकती है? देखिए, मैं जितना मैंने रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को पढ़ा है, जितना मैं उनकी कंसिस्टेंसी को, उनकी डेप्थ को जानता हूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनके लिए मामला ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इसराइल के लिए इसको अफोर्ड करना और एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के जो लोग हैं, जो गजा है, आपको तकरीबन 20 लाख की आबादी का पता है कि वो जिस कैफियत में ओपन जेल, उसको दुनिया की सबसे बड़ी कहा जाता है, ग़िज़ा, खुराक, दवा वहाँ नहीं आ सकती है, सीमेंट नहीं आ सकता है, एक घर अगर गिर जाए तो उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने रेजिस्टेंस को जो गुलेल से निकाल के रॉकेट के उस लेवल पे लेके आए हैं कि अभी हमास ने जो डाटा रिलीज किया है, मैंने अभी आपके टॉक शो से कुछ 5 मिनट पहले उसकी डिटेल्स ली है, तो 137 रॉकेट उन्होंने टोटल एग्जैक्ट 5 मिनट्स के अंदर फायर किए, और इनमें से जो उन्होंने इसराइल के पास दूर दराज इलाके हैं उनको भी हिट किया है, एश्कलोन हिट हुआ है, हैफा हिट हुआ है, और बहुत अहम जो इलाके हैं उनके वो हिट हुए हैं। तो एक तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, बल्कि किसी भी लेंथी एस्केलेशन का प्रेशर इसराइल के ऊपर होगा। सेकंड, वहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, चूंकि जो चौथा अभी इलेक्शन हुआ था कनेस्ट का, उसके बाद नेतन्याहू को 30 डेज मिले थे, 30 डेज के अंदर वो हुकूमत नहीं बना सके, और अब लिक्विड पार्टी की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर दिया है कि उनको 30 डेज दे दिए हैं कि उनके अंदर अगर आप हुकूमत बना सके तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां पर पॉलिटिकल डिबैकल है और उससे तहलील हो जाना है। तो ये भी उनके लिए इस वक्त सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। तो अगर इसराइल इसको थोड़ा सा स्प्रेड करता है, क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट देखी है, जो सराया अल कुद्स है, जो एक बड़ा प्रोमिनेंट इनका ब्रिगेड है, उन्होंने इसको फुल लेंथ पे जाने का कहा है। उन्होंने कहा हम फुल स्केल वार के लिए तैयार हैं। आपने ये देखा है कि अभी फलस्तीनियों के अंदर एक खास तरह की यूनिटी नजर आई है कि इस रेजिस्टेंस की मौजूदा जो लहर है उसको स्टार्ट किया है खुद फलस्तीन के अंदर, यानी जिसे आप मकबूजा फलस्तीन या इसराइल कहते हैं, यरूशलेम के अंदर जो वहाँ पे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले थे, वहां से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने रेजिस्ट किया और अल्टीमेटली इसराइली फोर्सेस को उन्होंने वहां से इवैक्यूएट कराया है, और वहां पे अभी नमाज का सिलसिला शुरू किया, और वो खुद एंटर हो गया फलस्तीनी। उसके बाद जो उनके ऊपर ज्यादती और जुल्म हुआ है, और इसी तरीके से वहां पर शेख जराह के कस्बे से वहां के मकामी लोगों को जो बेदखल करना है, वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कस्बा है, उसकी एक हिस्ट्री है। और शेख जराह जो है वो दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो है वो आप कह लें कि शाही तबीब थे, और उनके हवाले से वो मंसूब है। उसको वहाँ पे टेक ओवर करना, फलस्तीनियों की हैसियत और वहाँ पे जो उनकी सिंबॉलिक बाज इंपॉर्टेंसेस हैं
उसको भी खत्म करना है और उनकी वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से भी है। तो वहाँ पे अभी जो पिटीशन चल रही थी उसको उन्होंने अनलिमिटेड डिले कर दिया है वहाँ की जुडिशरी ने। अली सरवर नकवी साहब से पूछना चाहूँगा, क्या आप देख रहे हैं कि ये वॉर जो है झड़पें फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है? कि जब कोई सूरत हाल इस तरह की होती है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अव्वल फ़लस्तीनी अवाम जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव नथिंग टू लूज। वो सब कुछ गंवा चुके हैं, उनके पास अब मजम्मत और एक तरह से रेजिस्टेंस की ही सलाहियत है, और बाकी उनको और किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रही और ना ही वो कोई उम्मीद रखते हैं। तो वो सब कुछ अपना गंवा के वो अपने जिसको कहते हैं कि हथेली पे अपनी जान रखकर वो लड़ने को तैयार हैं। तो अगर ऐसी सूरत होगी, एक पूरी आबादी वो खड़ी हो जाए और लड़ने पे किसी हालत में भी वो लड़ाई करने पे तुली रहे, तो जंग भी हो सकती है। और ठीक है, उसमें इंसानी जिस्म पे जो हमला होगा, उनके टेक्नोलॉजी का, उनके आर्म्स का, वो बहुत बड़ा उस कौम पे मुसीबत आएगी, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सहारा होगा। बिल्कुल। लेकिन ये लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरे ये कि इसके कई पहलू हैं। इंसानी पहलू ये वाला जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरे सियासी पहलू, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज। आपने सिक्योरिटी काउंसिल का भी जिक्र किया था और आपने बताया था कि 2 स्टेट सोल्यूशन, ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि ये इस निहत्ती कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है, जिस पैमाने पे हो रही है, और उनको तकरीबन ये नीस्तो नाबूद करने पे तुले हुए हैं इजरायली, वो इस चीज़ को रोके। आखिर इंटरनेशनल लॉ इतने सालों से क्यों बना है, आखिर ये दुनिया का एक निज़ाम क्यों कायम किया गया है, वो इसी जैसी हालत को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकती है। यूएन अपनी पीस कीपिंग This is very important point. I want to ask it from Brigadier साहब। Brigadier साहब, do you think कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक जितने हमारे पास जितने भी हम देख चुके हैं वाक़यात, उसमें एक तो अमन कायम करने में बिल्कुल नाकाम रही है, पर्टिकुलरली इस इलाके में। दूसरी बात ये, अब कौन से ऐसे स्टेप्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ले सकती है जिसके बायस जो है ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन में चेंज हो जाए? सबसे पहले बात तो ये होती है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जस्टिस पर और उसूलों पर और इंसानी हुकूक पर अगर उनका पुख्ता यकीन हुआ और उसको सही माने में वो इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो फिर तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके डबल स्टैंडर्ड्स हो, उनके अपने मफादात हो, और वो ज़ाहिर है कि अमेरिका का या इजराइल का या ताकतवर का साथ देना है, और तो फिर तो ज़ाहिर है कि नहीं हो सकता। लेकिन ये दुनिया जो हम देखते हैं, प्रैक्टिकल जो वो है, जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो तो ये है कि इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जुल्म भी होता है, जंगें भी मुसल्लत की जाती है, लोग भी मारे जाते हैं, और फिर उसको या कोलेटरल डैमेज कर, या उसको दहशतगर्दी का नाम देकर, या उसको ऐसे इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं कि उसके असर को डाइल्यूट कर देते हैं। हमने ये देखा कि इजराइल ने बहुत अरसे से फ़लस्तीनियों के बारे में उनकी स्कॉर्चर पॉलिसी है। अब स्कॉर्चर पॉलिसी का जो टेम्पो है, वो कभी उसको बढ़ा लेते हैं, कभी उसको कम कर देते हैं अपने उसके मुताबिक। जब वो किसी इलाके का तय कर लेते हैं तो उसको कॉर्डन कर लेते हैं कि इसको हमने कब्जे में लेना है, फिर वहाँ पर डिमोलेशन शुरू कर देते हैं, फिर लोगों को निकाल देते हैं, फिर उनका अगर वो रेजिस्टेंस होती है तो उनको जेलों में डालते हैं और उनको ज़ख्मी करते हैं या उनको गायब कर देते हैं। ये तो उनकी पॉलिसी है। लेकिन अब ये है
کہ آیا اس قسم کی چیزوں کا انٹرنیشنل کمیونٹی کب ادراک رکھے گا یا ان کو تکلیف کب ہوگا، یا اسرائیل کے لیے پہلے بھی جو آپ نے سوال کیا اور بڑا اچھا وہ تھا کہ آیا اسرائیل اس کو سسٹین کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا اسرائیل کے لیے جو فلسطینی علاقہ ہے یہ آپ ان کے لیے ارریلیونٹ بنا دیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے اس علاقے کی آکوپیشن جو ہے ان کے لیے کاسٹ پروہیبیٹو بنا دو، وہ پیسے کے لحاظ سے ہو، ڈالر کے لحاظ سے، یا اس کا لوگوں کے مطلب ہے کہ اپنے جو جانے ہیں اسرائیلی آرمی کا جو نقصان ہے اس کے ذریعے۔ اب میں ایک اور بات اس میں درمیان میں لیتا ہوں کہ اسرائیل کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، خواہ وہ 73 کی وار ہے یا 67 کی وار ہو، کہ وہ جنگ کو دوسرے کے علاقے میں جا کر لڑتے ہیں۔ ان کے لیے وہ اپنا لانگ آرم جو ہوتا ہے ایئر فورس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو 2006 میں جس کا ذکر ہوا جو حزب اللہ کے خلاف ان کا وہ جنگ تھا، وہ پریکٹیکلی گلے لبنان کے علاقے میں، اور وہاں پر انہوں نے وہ جنگ ٹینکوں کے ذریعے لڑنے کی کوشش کی، لیکن حزب اللہ نے وہ انکنوینشنل طریقے سے ان کو فیس کیا اور اسرائیل کو منہ کی کانی پڑی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوا تھا۔ تو اگر اس قسم کا جنگ اسرائیل کے ان علاقوں میں آ جاتا ہے جس کا امکان ہے کہ انفلٹریٹ ہو سکتا ہے، یہ ڈومز کو اور ان چیزوں کو کراس کر سکتا ہے، تو پھر اسرائیل کے لیے یہ کاسٹ پروہیبیٹو بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ جہاں تک ان کے راکٹوں کے خلاف دفاعی نظام کا تعلق ہے، تو انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہا تھا، گلف وار ہو رہا تھا، تو اس وقت ان کے پاس پیٹریاٹ امریکہ نے دیا تھا، اور پیٹریاٹ 10% بھی ایفیکٹو نہیں تھا ان سکٹس کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا ماڈرن ترین نظام بھی ہو، وہ بھی ان جو واتڈ ہو اور سکٹ ہو یا جی بھی ہو، ان کے خلاف اس طریقے سے 100% وہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے جو سافٹ ٹارگٹس ہیں وہ اندر ہے، ان کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس لیے وہ ایئر فورس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک ناظرین، اور اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے کیا اس لڑائی میں ایران انوالو ہو سکتا ہے، کیا حزب اللہ چونکہ اس کے سینٹیمنٹس بھی ہیں، ایک اور مسلم امہ پر یہ اٹیک بھی ہے ایک طرح سے، کیا مسلم امہ اس معاملے پر متحد ہوگی یا نہیں؟ اس بریک کے بعد ذکر کرتے ہیں اس بات کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ کیا اس جنگ میں ایران انوالو ہو سکتا ہے، کتنے چانسز ہیں، کیونکہ حزب اللہ کا بھی ایک حزب اللہ اسرائیل کا ایک رائیول ہے اور ایک پرانی دشمنی بھی ہے، جس طرح سے مسلم امہ کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، جس طرح سے نہتے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، کیا یہ جنگ آگے ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ ناصر شیرازی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر یہ ایک فرنٹ کھولتے ہیں، فرض کریں کہ یہ غزہ کے اوپر ہی جنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور غزہ میں کوئی بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لینے لگتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ میسو یوز آف پاور کرتا ہے اسرائیل، اور ان کی ریزسٹنس کا ایک خاص انداز ہے جو وہ جواباً کرتے ہیں، تو اس کی کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ درست ہے، یعنی یہ پروپورشنیٹ نہیں ہوگی بلکہ کیجویلٹیز فلسطینی کی بہت زیادہ ہوں گی اور بہت بڑا ہیومینیٹیرین لاس ہوگا۔ تو عین ممکن ہے کہ اس وقت جو ہے ریزسٹنس کے وہ لوگ جو حماس کے ساتھ مربوط ہیں وہ سیریا کے ساتھ گولان ہائٹس میں ہیں، اور گولان ہائٹس جو ہے وہ اس وقت اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نئی کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو، چونکہ گولان ہائٹس دراصل دمشق کا ڈیفینس ہے، اور گولان ہائٹس کے اسرائیل کے انلیگل آکوپیشن کے ہونے کی وجہ سے سیریا بھی انکمفرٹیبل ہے اور وہ بھی الٹیمیٹ سپورٹ کرے گا، تو ایک نیا بارڈر کھول سکتا ہے۔ اسرائیل بیک وقت دو بارڈرز کے اوپر جنگ نہیں لڑ سکتا، اور اگر یہ دونوں بارڈر جو ہے وہ کسی ٹنس سچویشن میں ہوئے تو تیسرا بارڈر کھول سکتا ہے، اور وہ لیبنان کا بارڈر ہے، کیونکہ حزب اللہ نے بھی اپنے تمام فورسز کو ہائی الرٹ پہ رہنے کا کہہ دیا ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ پہلے اسرائیل کو ہمیشہ ایک سائڈ کے اوپر ہی کسی دباؤ کا
दुनिया ने लिखा है वो ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को लिखा है, जो दरअसल इनके साथ एक खास तरह की सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करते हैं। लिहाजा मैं बिल्कुल नहीं ये ख्याल करता हूँ कि ईरान डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और ऐसी किसी भी लार्ज स्केल का वार का जो नुकसान है वो टोटल इजराइल को होगा। मैं इसमें आपको एक फिक्र फैक्ट बताऊं जी जी। कि एक खुद जब मैं विजिट के ऊपर था तो एक इलाका है जो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के ऊपर है। इस इलाके का जब उन्होंने विजिट कराया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से इजराइल 2 घंटों के अंदर जो है वो पहले बैरूत को टेक ओवर करता था, और ये उसका रूट था। मैं एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसकी तरफ भी निशानदही चाहूँगा और सरवर नकवी साहब से जानने की कोशिश करूँगा। एक कैंपेन चली, एक मूवमेंट चली जिसमें इसराइल के स्टेट को तस्लीम करने के हवाले से हमने देखा खलीजी ममालिक ने बढ़ बढ़ कर तस्लीम किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वो कामयाबी बताई जा रही थी, और एक के बाद एक मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा था और इसराइल को तस्लीम करके अपने मरासिम बना रहा था। फ़्लाइट्स भी चली, मोरक्को से चली जो कि इसराइल आई। तो वो मुस्लिम ममालिक जो कि इस तमाम कैंपेन का हिस्सा थे, जिन्होंने तस्लीम किया, क्या वो अब अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की उस तरह से हिमायत करेंगे जिस तरह से उनकी दाद रसी करने का हक है? जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने उठाया है, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक फेज़ या एक दौर आया जिसमें कि बहुत से मुसलमान मुल्कों ने इजराइल से सफारती ताल्लुकात कायम किए और उसकी हैसियत को कबूल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इजराइल की कैंपेन थी ये ज़्यादातर सदर ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के तरफ से जो दबाव था उसका नतीजा था। वो अब वो सूरत हाल नहीं है। अब जो बाइडेन गरचे उनको भी इजराइल से बहुत हमदर्दी है, लेकिन वो दबाव वो नहीं डाल रहे कि उसको दूसरे ममालिक तस्लीम करें। इनफैक्ट जब सूडान ने तस्लीम किया था, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किया था, तो अमेरिकी हुकूमत ने उसको एक बहुत बड़ा एड पैकेज, एक बहुत बड़ा इमदाद का एक पूरा प्रोग्राम उनके हवाले किया था। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक जिन्होंने इजराइल को कबूल कर लिया है, उनको भी इस वक्त एक किस्म की गिल्टी फीलिंग हो रही होगी, क्योंकि वो अब जो कर चुके हैं वो तो पता नहीं बदलेंगे कि नहीं, लेकिन उनको जाहिर है ये एहसास होगा। और ख़ास तौर पे हुकूमतों में तो जो भी हो, अवाम वहाँ की वो परेशान होगी कि ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं जब उर्दू में था तो उर्दू की अवाम इसके फेवर में नहीं थी कि उनकी हुकूमत जो है इजराइल से सफारती ताल्लुकात रखे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसी सूरत हाल कायम रही, खुदा न खास्ता तशद्दुद इसी तरह चलता जारी रहा, तो ये जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें कुछ तो ये इस बात का एहसास हो हीगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सरवर नकवी साहब। ब्रिगेड साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अवामी एक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, हमने देखा पाकिस्तान में जब ये मसला आया तो अवाम ने भरपूर इसकी मुखालफत की। ख़बरें आ रही थी कि क्या हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या उसको नहीं करेंगे। एक अवामी प्रेशर, दबाव बन गया। बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अवामी जो है सैम्पति वो फ़लस्तीनियों के साथ मौजूद है, लेकिन हुकूमतें, बहुत सारी हुकूमतें फ़ैसला कर चुकी हैं कि उन्होंने इसराइल की हैसियत को तस्लीम करना है। क्या ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है? मेरे ख्याल में जिस तरीके से अंडर फियर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव की वजह से इन चंद ममालिक ने उनको तस्लीम किया इसराइल को, और पाकिस्तान पर भी दबाव आए और इसके अलावा बाकी इस्लामी ममालिक पर, ताकि इसका ये तादाद बढ़ाई जाए। ये तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव थी, और उसके साथ ज़ाहिर है कि कुछ स्ट्रिंग्स भी अटैच थे, और उसके साथ कुछ कोअर्शन और दबाव भी था। तो कुछ ने कबूल किया, कुछ ने नहीं किया। और अक्सर को जो फियर रहता था वो अपने अवाम का रहता था। अगर पाकिस्तान में भी अवाम का दबाव न होता तो शायद हम भी तस्लीम की तरफ जाते, क्योंकि हुकूमत को पता होता है कि इसकी क्या कीमत पर अदा करनी पड़ती है।
इसी तरीके से अभी जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो जाहिर है कि जुल्म के साथ तो वह मुसलमान हो, काफिर हो या एथियस्ट हो, वो तो जुल्म को बर्दाश्त या जुल्म को अच्छी निगाह से तो नहीं देखता। तो जाहिर है कि एक सोशल मीडिया का दौर है और लोग फिर अंडरडॉग के साथ, मजलूम के साथ चले जाते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है वो फिर उनके उस वक्त के जो हुक्मरान होते हैं उनके खिलाफ जाता है और उनकी जो पॉपुलरिटी है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर फिर एक किस्म के कियास या कन्फ्यूजन या लोगों के दरमियान खलीज, हुकूमत और उसके दरमियान और रियाया के दरमियान खलीज वाक़ हो जाता है। तो ये भी एक ख़तरनाक बात होती है। एक और तरफ पर भी मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देख लो, इतना अरसा हुआ 1948 से अभी तक इजराइल का हर शहरी, वह बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, वो एक स्टेट ऑफ वार में है, वो एक परपिचुअल वार में है, वो एक ऐसे सिंड्रोम में है, फियर सिंड्रोम में है, और वो फियर सिंड्रोम में बड़ा हुआ है। और उसका जब वो इजहार करता है तो वो जुल्म के ज़रिए करता है, ज़्यादती के ज़रिए करता है, और वो ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ पर उसका नतीजा देख लो कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो फियरलेस होते जा रहे हैं, उनसे खौफ का एलिमेंट जाता रहता है, और जब वो फियरलेस हो जाते हैं और ये फियरफुल हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा तवाज़न नहीं रख सकेगा, और यही इजराइल के लिए एक साइकोलॉजिकल मौत भी वाक़ हो जाती है। और उसका आपने देखा होगा कि ये जो स्कॉर्चर पॉलिसी थी ये इंडिया ने रिप्लिकेट किया, और वहाँ पर जो 35 एक्ट अमेंड किया, और इसके अलावा वहाँ पर जो लॉकडाउन और इनकम्युनिकेट और ये सारे सिलसिले कर लिए, ये इजराइल की वहाँ पर जो पॉलिसी थी उसको रिप्लिकेट कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से कश्मीरी फियरलेस हो चुके हैं, इसी तरह फ़लस्तीनीज़ भी अभी मौत से नहीं डरते। और अगर वो आप देखने होगा, वो वीडियो देखनी होगी कि उनके बच्चे, उनके औरतें जिस तरीके से खुशी से अफ्तारी कर रहे हैं और उनके सरों पर संगीनों के साए हैं, तो जाहिर है ये तो कोई ताकत है, ये तो एक, और इस ताकत को कोई नहीं चीज सकता है, और न उसको कोई शिकस्त दे सकता है, और न उनको कोई सबड्यूट कर सकता है। तो ये फाइनल जो जीत होगी इन फ़लस्तीनियों, इन मजलूमियों की होगी। ठीक हो गया, फाइनल जो जीत होगी वो फ़लस्तीन और मज़लूमों की होगी। देखना है क्या ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होती है या नहीं। हालात कशीदा हैं, आलमी बिरादरी तशवीश का इजहार कर रही है, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बयानात सिर्फ जारी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। आलमी बिरादरी से भी अपील की जा रही है मुस्लिम ममालिक की जानिब से कि अमली तौर पर कोई कदम उठाएं। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। तीनों मौज़िज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।